जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये जुलाई का महीना कितनी खुशियों से भरा हुआ है। पहले गुरु जी का जन्मदिन और फिर गुरु पूर्णिमा जैसा महान अवसर। दिल खुश हो गया जब सेलिब्रेशन देखी दुनिया के अनेकों जगह पर। ना सिर्फ जालंधर, चंडीगढ़, पुणे, मुंबई, दिल्ली, अंबाला, जम्मू, बल्कि मेलबोर्न, न्यू जर्सी, वैंकूवर जैसी दुनिया के अनेकों जगह। जय गुरुजी। गुरुजी सबके कष्ट काटकर खुशियां बांट रहे हैं। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का सत्संग। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई सत्संग मिस न कर सकें। जैसे कि गुरुजी कहते थे, सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सारी संगत जी नू जय गुरु जी। कोटम कोट प्रणाम गुरु जी। सारी संगत जी नू मेरा प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल ते सब नू जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਨਿਧਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, 22 ਜੁਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਨਸੀਬਾਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਨੈਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਕਚਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਟਸ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਜੈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਨੈਪਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ, ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਸਨੈਪਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ
ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਆਮ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰੀय ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਵੋੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਭਾਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਂਸੂ ਆਈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਸ਼ਰੂ ਆਈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਜਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨਤଃ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿੰਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟ 100% ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਦੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਪ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 1 ਬਾਏ 1 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਰੀਅਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰੂਪ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਛਾਂਦੇ ਗਏ, ਛਾਂਦੇ ਗਏ, ਛਾਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ 24 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਿਧ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਵਸ਼ੈਨੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀਗੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ, ਇੱਕੋ ਸਭੀ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਾਲਜ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਵ ਸ਼ਯਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਯਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸ਼ੀਰ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਈਆਂ ਪਾਰ ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਕੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਕੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਵ ਸ਼ਯਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੋਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਾਕਸ਼ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 100% ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰੂਪ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡਲਜ ਹੋ ਕੇ 100% ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਲਰ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਨੋਰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਪਿੰਕ ਅੱਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ
ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਉੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 100% ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਟਿਡ ਸੀਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 100% ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਿਧ 'ਚ 100% ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੇ ਵੀ 5-10% ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਕਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ 100% ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਸ਼ਣ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 22 ਜੁਲਾਈ, 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 100%, 200%, 500% ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕਸ਼ਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਭ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੂਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਦ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਸਾਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 101% ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਅਨੰਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਨੋਰਥ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪਾਓ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੋ, ਉਧਾਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ
ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਤ ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 22 ਜੁਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖੋ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਔਰ ਇਹੀ ਐਸੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਸ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी वैसे गुरु जी मुझे अपनी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हम क्या कह सकते हैं गुरु जी के बारे में, वो तो बहुत महान हस्ती हैं, वो तो साक्षात महाशिव हैं, तो उनके बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं। बस हम तो कुछ भी नहीं है गुरु जी के सामने। तो मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी ये सत्संग 2022 का है और जब मुझे एक अंकल जी मिले थे उस दिन डेट थी 26 मार्च 2022। तो उन्होंने मुझे, अंकल जी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था कि बेटा उस दिन मैं बहुत परेशान थी, मेरा अपने हस्बैंड के साथ बहुत झगड़ा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ही बात बढ़ गई थी। तो ऐसे ही वो अंकल जी हमें मिल गए, मतलब पुलिस कंप्लेन तक कर दी थी मैंने संगत जी, तो बहुत ज़्यादा ही बात हो गई थी। तो वहीं पुलिस स्टेशन में मुझे एक अंकल जी मिले कि बेटा आप तो बहुत परेशान हो, बहुत झगड़ा हो रहा है आपके बीच में, तो आप एक काम करना, मैं आपको एक गुरुजी के बारे में बताता हूँ। देखो ये मेरे गुरुजी हैं, मेरे गले में इनका लॉकेट है और इनके पास जाना मेरे कहने से, क्योंकि आप बहुत परेशान हो, आप दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत लड़ाई हो रही है।
तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप जाना वहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आप दोनों ही बहुत अपसेट हो। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी, हम चले जाएंगे, आप हमें एड्रेस दे दो। उन्होंने हमें एड्रेस बता दिया था कि कहाँ पे है, कैसे कैसे जाना है। ठीक है, तो उन अंकल जी का तो मैं बड़ा शुक्रिया करती हूँ, बड़ा शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया, क्योंकि उससे पहले मैंने गुरुजी के बारे में किसी से कुछ सुना भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं। शायद वो कहते हैं ना, गुरुजी जब हमें अपने आप से जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो खुद ही हमारा अपनी क्लास में एडमिशन करते हैं। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है यहाँ, सब कुछ जो भी कुछ होता है गुरुजी की ही मर्जी से होता है संगत जी। तो गुरुजी उस दिन मुझे अपने आप से जोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने उन अंकल जी को भेज दिया। फिर ठीक है, हम वहाँ से आ गए, जैसे भी हुआ हम घर आ गए। फिर घर पे आने के बाद मेरे मन में ये बार बार बात आ रही थी कि वो अंकल जी मिले थे हमें वहाँ पे, और उन्होंने कहा था कि आप इन गुरुजी के मंदिर में जाना, वो गुरुजी के से प्रार्थना करना, प्रेयर करना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, वो महाशिव हैं, वो सब ठीक कर देंगे, आप जाना एक बार गुरुजी के पास, और कुछ नहीं लेके जाना, बस एक बार घर से निकलते समय गुरुजी का नाम ले लेना कि गुरुजी हम आ रहे हैं आपके मंदिर, जय गुरुजी। तो मैं एकदम से संगत जी, मेरा मन बार बार गुरुजी से मिलने के लिए जैसे तड़प रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज ही मिल लूं गुरुजी से, आज ही चली जाऊं उनके मंदिर। हमने कई बार प्लान बनाया। फिर हम अप्रैल 2022 में हम गुरुजी के मंदिर फर्स्ट टाइम गए थे। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, वो टाइम शायद शाम के 4 बज रहे थे। तो हम उस दिन यहाँ से घर से निकले, अपनी कार से गए, मैं अपने बच्चों के पति के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहाँ पे बहुत सारी सुविधा थी, बहुत अच्छी तरह से सेवादार संगत की हेल्प कर रहे थे, उनको सब कुछ बता रहे थे कि आप यहाँ गाड़ी पार्क कीजिए, इधर से जाइए, आपको यहाँ से शटल सेवा मिलेगी। तो सब कुछ उन्होंने ही बताया हमें, सेवादारों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था वहाँ गुरुजी ने। तो संगत जी फिर हम वहाँ चले गए। फिर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई, उसके बाद हम शटल से गए, गुरुजी की शटल सेवा है, उन्होंने हमें मंदिर के बाहर उतार दिया। फिर हमने अंदर दर्शन करने के लिए गेट पे एंट्री की। तो जैसी संगत जी हम अंदर गए तो मुझे ऐसा फील हुआ संगत जी, ऐसा फील हुआ कि मानो हम स्वर्ग में आ गए हैं। बस मुझे ऐसा फील हुआ कि हम स्वर्ग में आ गए। धरती पे कहीं अगर स्वर्ग है ना, तो वो गुरुजी का बड़ा मंदिर ही है। मेरा मन मतलब इतना खींच रहे थे ना गुरुजी अपनी तरफ, मेरे दिल में एकदम समा गए थे अंदर, जैसे कि गुरुजी मेरे अंदर ही हैं। वो कह रहे हैं कि बेटा तू आ जा, मैंने तुझे जोड़ लिया है अपने आप से। फिर हम लाइन में बढ़ते गए आगे। हमने पहले गणेश जी के दर्शन किए, फिर समाधि के दर्शन किए गुरुजी की। फिर हम ऐसे ही आगे को चलते रहे जैसे सेवादारों ने बताया। और फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर में अंदर, जहाँ पे गुरुजी के बहुत बड़ा हॉल है, बड़े बड़े स्वरूप लग रहे हैं, हमने वहाँ पे उनके दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन किए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी अपनी तरफ खींच रहे हैं हमें, अंदर से हमारी सॉल खींच रहे हैं कि बेटा तू आ गई, मैं कब से इंतजार कर रहा था तेरा। फिर वहाँ से गुरुजी के दर्शन करते हुए हम गुरुजी के चोले के दर्शन किए। फिर वहाँ से दर्शन करते हुए हम जय गुरुजी बोलते हुए अंदर लंगर हॉल में चले गए। वहाँ पे हमें लंगर प्रसाद मिला, वो हमने खाया, वहीं पे बैठ के आराम से तसल्ली से जल प्रसाद मिला, बस वो खा के हम फिर वापस अपने घर को चल दिए। तो वो दिन ऐसा था कि गुरुजी से मैं अपनी 110% कनेक्ट हो चुकी थी। गुरुजी ने अपनी क्लास में मुझे एडमिशन दे दिया था। बस फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता था, कुछ भी। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बस मुझे गुरुजी ही याद रहते थे। तो गुरुजी ने मुझे अपने आप से ऐसा जोड़ा। और जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, कोई भी मुसीबत होती है, मन में कोई चिंता, डर, कुछ भी होता है, सिर्फ गुरुजी का ही नाम निकलता है मेरे मुंह से। और अगर मैं किसी मंदिर में भी जाती हूँ, किसी भगवान की मूर्ति के सामने भी खड़ी होती हूँ, तो मुझे ये नहीं पता होता कि ये सामने शेरा वाली माता है, राम जी हैं, कृष्ण जी है, सिर्फ गुरुजी का ही नाम निकलता है मेरे होठों से। तो गुरुजी ने अपने आप से ऐसा जोड़ लिया है मुझे संगत जी। लख लख शुक्राना गुरुजी का, मेरे पिता, मेरे परमात्मा, महाशिव, मैं तो उन्हें अपना सब कुछ मानती हूँ। मेरे गुरुजी ही मेरे सब कुछ है, मेरे माँ बाप, भाई बंधु, सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। बस मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी मरने के बाद अगर मुझे कोई जीवन मिले या कुछ भी हो, बस मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को अपने आप से कनेक्ट कर लेना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी अपनी दासी बना के अपने चरणों में जगह देना। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी के चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
सबका भला करना गुरुजी। संसार में सब जीव जंतु इंसान को आपस में प्यार से रहने की शक्ति देना, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। अगर इसे शेयर करते समय, बोलते समय मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के बड़े दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुजी जी से मैं कब जुड़ी? 2022 में मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी दीदी के फ़ोन पर देखा था। तो मैंने पूछा कि यह कौन है गुरु? तो दीदी ने बताया कि यह गुरुजी हैं, ये साक्षात शिव के अवतार हैं। तो मैंने भी उन गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा मेरे मन में होने लगी। मैंने अपनी परेशानी अपनी दीदी को बताई तो दीदी ने मुझे कहा, तुम सब गुरुजी पर छोड़ दो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। दीदी ने मुझे सत्संग भेजना शुरू किया और मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी दीदी मुझको सत्संग भेजती, मैं वह दिल लगाकर सुनती और घर में मंत्र जाप भी सुनती और गुरुजी के भजन भी सुनती। जल प्रसाद का भी सेवन करने लगी। जो भी चाय प्रसाद बनाती, खाना बनाती, उसका भोग मैं गुरुजी को लगाने लगी। तब तक तो मेरे पास स्वरूप भी नहीं था, लेकिन एक दिन हम बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना हम सबका। मैं अपने 4 साल के बेटे को साथ लेकर अपनी दीदी और के साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ बड़े मंदिर जाते समय हमें गाड़ी में फूलों की बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगी। तो दीदी जी ने कहा कि यह सब गुरुजी की खुशबू है। हमें बड़े मंदिर गए, वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। बहुत अच्छा लगा। वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर और शांति में था। गुरुजी का मुझे वाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ और मैं स्वरूप लेकर बहुत खुश हुई। आते समय भी हम बहुत खुश हुए। गुरुजी का स्वरूप मैं अपने घर पर लेकर आई। गुरुजी का स्वरूप लेकर आई तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगता है। दीदी जी ने मुझे सब कुछ बता रखा था। जैसे ही मैं 14 नवंबर 2022 को गुरुजी के बड़े मंदिर से जाकर आई हूँ, जो मेरे मन में परेशानी थी वह बहुत कम हो गई। मैंने उसके बारे में धीरे धीरे सोचना कम कर दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 12 जनवरी को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही। तो मुझे फ़ीवर भी हुआ, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। मेरे शरीर पे भी खारिश होनी शुरू हो गई थी। तो मैं परेशान हो रही थी, गुरुजी आप कुछ ठीक करो, गुरुजी ठीक करो। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो रही। तो मैंने दवाई भी ली। तो मेरे को चक्कर आ रहे थे, तो मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं इतनी खुश हुई कि जहाँ 4 साल से मैं परेशान चल रही थी और कहाँ मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे कुछ ही दिन हुए और गुरुजी ने मेरी अरदास इतनी जल्दी कबूल कर ली। मैं इतनी खुश हुई कि मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मेरे अंकल जी भी बहुत खुश हुए कि गुरुजी ने हमारी बात सुन ली। कहाँ तो हम इतने परेशान हो रहे थे। गुरुजी की कृपा से पहले मुझे एक बेटा है, लेकिन मुझे एक और संतान चाहिए थी कि बेटा हो या बेटी कि परिवार कंप्लीट हो जाए। गुरुजी की कृपा से मुझे उस दिन 12 जनवरी को यह पता चला कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। संगत जी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी कि मैं कुछ
घर का काम भी नहीं कर पाती थी। मेरी इतनी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन मैं गुरुजी से हर दिन अरदास करती थी, गुरुजी जो भी करोगे आपने दिया है, आप ही मुझे संभालोगे। गुरुजी यह जो मेरी गर्भकाल की जर्नी है, यह सब कुछ आप ठीक करोगे, आप ही मुझे सिरे तक लगाओगे, मेरी नैया को पार लगाओगे। संगत जी, मैं इतनी बार मेरी तबीयत खराब रही है, लेकिन गुरुजी ने मेरी हिम्मत, मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। जब जब भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मेरी तबीयत खराब हुई, गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया और अच्छे डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट, जहाँ से मैं चाहती थी वहीं से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। संगत जी, मेरे अंकल जी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, फिर भी मेरा इतने अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट गुरुजी ने ही करवाया। संगत जी, जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें बच्चे की नाक की हड्डी नहीं आई। मैं बहुत घबराई, रोई। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है और अब ये क्या हो गया। पर लेकिन गुरुजी के आगे किसकी चलती है। मैंने फिर भी अपना विश्वास नहीं डोलने दिया। मैंने कहा, गुरुजी बच्ची आपने दी है, बस मैं ये चाहती हूँ बेटा हो या बेटी, बस उसके सभी अंग स्वस्थ रहें। गुरुजी का मैं लगातार जल प्रसाद लेती रही, लगातार लेती रही। डॉक्टर ने मुझे बोला कि 15 दिन के बाद आपका फिर से अल्ट्रासाउंड होगा। संगत जी, मैंने 15 दिन लगातार गुरुजी का जल प्रसाद बिना टूटे मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती रही और 15 दिन के बाद फिर मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। उसमें मेरी रिपोर्ट एकदम ओके आई। डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि एकदम ओके है। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा, गुरुजी आप अपनी संगत की बहुत जल्दी सुनते हो। आपने मेरे को फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर खुशखबरी आने वाली है, तू चिंता छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी के मैसेज पढ़ पढ़ के मेरे को हिम्मत हौसला मिलता रहा। कभी रोटी में मुझे ओम के दर्शन होते, कभी बटरफ्लाई मेरे घर के बाहर होती और कबूतर के रूप में तो कबूतर मेरे घर में भी आते हैं। तो गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तब मुझे सिस्टर ने कहा कि ये हाथ से ब्रेसलेट निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने बोल दिया कि नहीं, ये तो मैंने डॉक्टर से पूछ के पहना हुआ है। फिर नर्स ने बोला चलो कोई बात नहीं। मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेकर गई। गुरुजी की कृपा से मेरा सिजेरियन, मुझे बेटी हुई। मैं इतनी खुश हुई, गुरुजी ने की कृपा से मुझे बेटी ब्लेस्ड हुई। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी किस्मत वालों को बेटी देते हैं। जब से गुरुजी ये बेटी मेरे घर में आई है, खुशियों का भंडार मेरे घर में आ गया है। गुरुजी की कृपा से मेरे घर में खुशियों की बौछार आ गई है। जो मान सम्मान मुझे नहीं मिला था वो भी मुझे मिल रहा है। मेरे अंकल जी तो हमेशा मेरा पल पल साथ देते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी ने मेरा हमेशा सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया है। इस सारी जर्नी में मेरे भाई, मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है संगत जी। और अब तो जो मेरे ससुराल वाले हैं वो भी मेरा बहुत अच्छे से लगाव करते हैं, मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी महाराज जी, यह सब आपकी कृपा से है। गुरुजी ने कहा गुरुजी की कृपा से सब हो रहा है। संगत जी, मैं तो गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना करती हूँ। संगत जी, पहले मैं अपना घर बनाने के लिए बहुत परेशान हो रहे थे हम। ये 2020 की बात है संगत जी, हमारा अपना घर नहीं था। हम अपना घर बनाना चाहते थे। इसके लिए घर में थोड़ा गृह क्लेश भी रहता था कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन संगत जी, हमारे यहाँ पे एक शिव मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हम हर शिवरात्रि को वहाँ पे जाते हैं मत्था टेकते हैं। गुरुजी को मैं संगत जी, मुझे नहीं पता था गुरुजी शिव जी के अवतार है। मैं शिव जी भगवान को पहले से ही बहुत मानती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से जब हम अपना घर बनाने लगे तो घर की परेशानियों के कारण हम अपने किराए पे रहना
रहने की नौबत आ गई थी। लेकिन संगत जी मैं गुरु जी पे ये बात छोड़ रखी थी, गुरु जी महाराज जी आप जहाँ भी मुझे लेके जाओगे बस वहाँ पे आप ही सुरक्षित रखोगे, जहाँ भी मेरा घर मकान बने वहाँ वो हम सुरक्षित रहें। तो संगत जी हमें वो किराए का मकान पसंद नहीं आया और रास्ते में आते हुए मुझे बहुत बड़ा शिवलिंग, बहुत बड़ा शिव जी की प्रतिमा दिखी और मैंने अपने अंकल जी को कहा आप यहीं पे ही अपनी बाइक रोक दीजिए। मैं इतनी रोई मैंने इतनी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी क्या शिव जी भगवान जी आज शिवरात्रि का दिन है और मैं दर बदर दर भटक रही हूँ अपने घर के लिए, क्या आप मैं ऐसे ही भटकती रहेगी क्या आपकी बच्ची। संगत जी वह शिवरात्रि का दिन था, 2021 में शिवरात्रि थी, वो शिवरात्रि का दिन था संगत जी। और अगली शिवरात्रि को मेरे घर पे चौखटें लग गई, मेरा खुद का अपना घर, अगली शिवरात्रि पर मेरे घर की चौखटें लग गई। गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी ने मेरी एकदम पुकार सुन ली संगत जी, और अगली शिवरात्रि पे मेरा घर की चौखटें लग गई। गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी। संगत जी मैं तो गुरु जी के आगे अपना सत नमन करती हूँ। गुरु जी आप अपना प्यार संगत पर ऐसे ही बनाए रखना। गुरु जी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मेरे मालिक अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, अपने चरणों से जोड़े रखना। संगत जी गुरु जी ने मेरी हर इच्छा को पूरी करा है, मुझे अपना नया घर बनाया है, उसमें बहुत अच्छा बना है गुरु जी की कृपा से। जैसा हम चाहते थे वैसा ही बना है संगत जी। और मेरे अंकल जी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम होते हुए भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। कहीं से भी अरेंजमेंट हो जाए, कहीं से भी कुछ हो जाए, गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी हर रूप में आके मदद करते हैं। संगत जी लख लख बारी शुक्राना, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मालिक ऐसे ही हाथ पकड़े रहना मेरे गुरुजी महाराज जी, अपनी कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना। यह परिवार मेरा नहीं गुरुजी आपका है। हमसे तो गलती होती रहती है गुरुजी, हम तो इंसान तो गलतियों का पुतला है गुरुजी, लेकिन आप हमें माफ़ करना मालिक, अपने चरणों से जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, तो मैं सोचती थी कि मैं सुबह भी शुक्राना करती हूँ, शाम को भी शुक्राना करती हूँ, तो शुक्राना कैसे करते हैं मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने सत्संग में सुना कि शुक्राना अपना सत्संग शेयर करके होता है। तो संगत जी मेरा पहला सत्संग है, इसलिए अगर सत्संग बोलते समय मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो आप कृपा करके मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी यह संगत जी मैं यह सत्संग लोहड़ी वाले दिन रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश मैं यह कर नहीं पाई। लोहड़ी वाले दिन से पहले भी मेरे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा गुरुजी। तो मैं सुबह खाना बनाने लगी तो गुरुजी ने मुझे ओम रोटी में ओम के दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन देकर ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हम जैसों को अपने चरणों में लगाने का शुक्राना। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी सत्संग में जाना चाहती थी, मेरा वहाँ पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बना था। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा था कि गुरुजी बस जैसे भी लेके जाओगे आप ही लेके जाओगे, ठंड इतनी हो रही है कैसे जाऊं बच्चों को लेकर। लेकिन तभी गुरुजी मेरे भाई का मुझे कॉल आता है कि सत्संग में चलना है। मेरा भाई गाड़ी लेके आता है और जो मेरे दिल की इच्छा थी सत्संग में जाने की, वो गुरुजी ने मेरे भाई के रूप में आकर मुझे मेरी इच्छा को पूरी किया। गुरुजी ने मुझे नए साल का तोहफा 7 तारीख की सत्संग में भेजकर मेरा जीवन का सबसे बेस्ट तोहफा मुझे दिया है। क्योंकि गुरुजी मैंने जहाँ से सोंडा दरबार से मैंने नाम शब्द लिया हुआ है गुरु रविदास जी महाराज जी का,
पहले मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि मैंने नाम शब्द लिया हुआ है गुरु रविदास जी महाराज जी का, और अब मैं गुरु जी से जुड़ गई हूँ। कभी मैं दो नावों में सवार तो नहीं हो रही, लेकिन गुरु जी ने मेरे भ्रम को, मेरे वहम को भी दूर कर दिया। एक दिन मेरे सामने वीडियो आई, उसमें गुरु नानक देव जी और गुरु नानक देव जी ने और गुरु रविदास जी महाराज जी ने एक ही जैसा चोला पहना हुआ था। तो गुरु जी ने मुझे यह दर्शाया कि सब एक हैं, सब एक हैं। भगवान कोई भी हो, रूप अलग होते हैं, लेकिन शक्ति सबकी एक है। गुरु जी ने मुझे मेरे स्वप्न में, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ऐसे करके भी दर्शन दिए। गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर मेरे से सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आप पल पल मेरे पूरे परिवार का साथ देते हो, हर घड़ी हमारी संभाल कर रहे हो मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस के थ्रू मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं जितना हो सकता है मैं उनकी आगे का पालन भी कर रही हूँ, और जो वो कहते हैं मैं कर रही हूँ, पर मैं शायद हर चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे चीज़ें ना काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ, मेरी मेंटल स्टेट ऐसी रही है काफ़ी टाइम से, कुछ टेंशन, डिप्रेशन, कुछ सालों तक मेरे लाइफ में ऐसे चले हैं कि मतलब मेरा माइंड ऐसा रहा ही नहीं कि मैं हर बातें ना याद रख पाऊँ। तो मैं जब सत्संग गुरु जी के सुनती भी हूँ तो मुझे, जैसे अभी किसी ने बताया है तो मैंने वो सुन लिया, ठीक है मुझे ये करना है। इतनी देर में नेक्स्ट सत्संग आता है तो मैं वो सुनती हूँ, तो हाँ ठीक है ये करना है। और जब तक कोई और आता है तो मैं पीछे का भूल जाती हूँ, मतलब जितना मुझे याद है मैं करती हूँ, याद आ जाता है तो करती हूँ, या नहीं तो वो रह जाता है। और संगत जी, मैं आज एक और सत्संग गुरु जी का शेयर करने जा रही हूँ, और मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जो भी बोलूंगी गुरु जी की कृपा से बोलूंगी, जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो बोलूंगी। और एक्चुअल में मुझे ये थॉट्स मेरे दिमाग में गुरु जी ही लेकर आए हैं, और उन्होंने ही मुझे मैसेजेस के थ्रू या संगत जी के थ्रू मुझे ये सब रियलाइज करवाया है। क्योंकि संगत जी, मैं लास्ट मंथ ही अप्रैल मिड के आसपास ही गुरु जी से कनेक्ट हो पाई हूँ। पूरी तरह से कनेक्ट तो नहीं कहूँगी, हाँ, बट कुछ हद तक हुई थी, क्योंकि मुझे पहले भी, कुछ साल पहले भी गुरुजी के मुझे मैसेजेस शो होते थे, मुझे किसी के थ्रू, मुझे गुरुजी को, मैंने उनको देखा था बहुत लोगों के स्टेटस पे, बट मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाई। मैं एक्चुअली में कभी गुरुजी या किसी से ऐसे इजीली कनेक्ट कर भी नहीं पाती हूँ, मतलब रिस्पेक्ट मैं सबकी करती हूँ, बट एक वो कनेक्शन होता है ना अंदर से कि हाँ, वो मैं नहीं कर पा रही थी। बट अचानक से एक दिन बैठे बैठे मुझे गुरुजी का मैसेज शो होता है, लास्ट मंथ की बात है, कि तेरी सारी बीमारियां दूर कर दूंगा, तू बड़े मंदिर आके जल प्रसाद ले और लंगर कर, उससे मैं तेरी सभी बीमारियां जड़ से खत्म कर दूंगा। तो मैंने भी ऐसे ही बस रैंडमली बोल दिया मेरे अंकल जी को कि ऐसे ऐसे गुरुजी का मुझे मैसेज शो हुआ है, मुझे ऐसे बोल रहे हैं और आप मेरे को बड़े मंदिर ले चलोगे। उन्होंने भी एक सेकंड में मुझे हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है ले चलूंगा। वो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना करते भी नहीं है, और हाँ अगर वो बिजी होते हैं तो तब नहीं ले जा पाते हैं, बट वो जब भी फ्री होते हैं तो ले जाते हैं। और तब ऐसा हुआ कि मतलब उनको टाइम भी मिल गया, शायद वो गुरुजी की ही कृपा थी कि वो मुझे अपनी शरण में लेना चाहते थे। वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे थामा, मुझे बुलाया, उनकी कृपा से ही। बिना उनकी कृपा के संगत जी मुझे नहीं लगता कोई वहां तक पहुंच पाता होगा। जिसका जब जो टाइम आता है और गुरुजी जब चाहते हैं तो तब ही हम वहां तक जा पाते हैं। क्योंकि गुरुजी का तो मुझे पहले भी शो होता था, बट मैं कभी ना मेरे मन में वहां जाने की इच्छा जागरूक हुई, ना ही मतलब पता नहीं क्यों वो कनेक्शन हुआ ही नहीं। बट अब अचानक से ऐसा हुआ
और सब चीजें पॉसिबल होती चली गई। तो मैं और मेरे अंकल जी हम गए भी और हमें कुछ भी नहीं पता था, बट हम गए और हमें गुरुजी हर तरह से रास्ता दिखाते गए और सब चीजें हो गई, ठीक है। जय गुरु जी। उसके बाद आज जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, वैसे तो बहुत सत्संग इससे पहले भी कुछ सत्संग हुए हैं, मैंने पहले भी शेयर किए हैं, बट आज जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि सत्संग संगत जी, मैं ना गुरुजी को मतलब मैं चाहती, जैसे मैं सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है गुरुजी उन सबको दर्शन दे रहे हैं संगत जी को, कभी ओम रूप में, कभी तितली रूप में, तो कभी किसी रूप में, है ना, कभी स्वप्न दर्शन दे रहे हैं। तो मेरे मन में भी एक इच्छा बार बार आती है कि गुरुजी आप मुझे भी ऐसे दर्शन दो ना, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। मतलब मैं पूरे दिन है ना ऐसे वेट करती रहती हूँ पागलों के जैसे कि मुझे गुरुजी कब कहाँ दर्शन देंगे। मैं हर किसी में गुरुजी को ढूंढने लगी हूँ, पता नहीं कौन गुरुजी के रूप में कब कहाँ आ जाए, मैं उन्हें पहचान पाऊँ ना पाऊँ। मतलब मेरा ध्यान ही इस चीज में रहता है। गुरुजी के मुझे मैसेज शो होते हैं, मैं चाय पीने आऊंगा, मैं तेरे साथ, तू मुझे पहचान लेना, मैं तुझे स्वप्न दर्शन दूंगा, मैं तुझे ये तितली के रूप में दर्शन दूंगा, बट पता नहीं मुझे वैसे उस रूप में गुरुजी दर्शन दे नहीं रहे हैं। और मैं गुरुजी से लड़ने भी, मतलब आप उसे लड़ना कह भी सकते हैं या शिकायत करना, एक होता है ना जिद्दी बच्चा जो अपने पेरेंट्स से शिकायत करता है, आपने तो ये बोला था पर आपने किया तो नहीं। तो मैं भी ऐसे ही करती रहती हूँ कि गुरुजी आप सबको दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तो मैं कोई पापी बच्चा हूँ या मुझसे कोई गलती हो गई, या मुझे माफ कर दो, या मेरे मन के भाव गलत है शायद जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी कैसे कैसे दर्शन दे रहे हैं। मतलब इतना सुनने के बाद भी अब भी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे जिससे सत्संग में पता लगा था संगत जी के थ्रू कि अगर आपको मरे हुए कबूतर आपके घर में आपके आसपास दिखता है तो, और मुझे गुरुजी के मैसेजेस भी आते, मैं तुझे बहुत बड़ी संकट से निकाल रहा हूँ, काला जादू है उससे बचा रहा हूँ, बचा लिया है, मैं आया था, मैंने तेरे संकट अपने ऊपर ले लिए। तो मैं ये क्यों नहीं समझ पाई संगत जी कि वो भी तो गुरुजी ने ही तो दर्शन दिए हैं, वो सुन रहे हैं, वो मेरे आसपास हैं, वो देख रहे हैं, वो सब कुछ गुरुजी ही तो कर रहे हैं। मैं क्यों पागल बच्चों की तरह मैं उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर रूप में ही देखना चाह रही हूँ। मतलब और मैं सच बताऊं संगत जी, मैं कुछ टाइम से ना, मैं हमेशा ऐसे चुलबुली सी रही हूँ, अपनी मस्ती में रही हूँ, अकेले रह के भी खुश रहती थी खुद को, पर कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था, मैं अब मेरे ससुराल में रहती हूँ और यहाँ पे ना मैं अकेले रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची, बट हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी पे, हम 3 ही होते हैं। कभी कितने टाइम ऐसा भी हुआ मैं अकेली भी रही हूँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सैड हूँ, मुझे किसी की जरूरत है, मैं खुश ही रहती थी, मैं अपने आप में बिजी, अपने आप में खुश। पर अब काफी टाइम से ना ऐसा हो रहा था कि मैं, हस्बैंड भी है, बेटी भी है, बट स्टिल मैं अलग ही खोई हुई हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे मन की शांति नहीं है, दिमाग में कोई सुकून शांति कुछ नहीं है, मैं अलग ही बैठे बैठे रोने लग जाती हूँ, मरने का दिल करता है। फिर मैं सोचती हूँ यार मेरे हस्बैंड का, मेरी बच्ची का क्या होगा, क्योंकि ये दोनों भी तो मेरे ही सहारे हैं, मतलब उनको भी तो मेरी जरूरत है ना। मैं कैसे, मेरे को लगता था यार बस दुनिया से ना मुझे छुटकारा चाहिए, मैं नहीं जीना, मैं मतलब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे हर चीज का भी क्रेज भी था, मैं शॉपिंग करूं, मैं ये करूं, अगर अब मैं कर भी लेती हूँ ना तो वो सब रखा रहता है, मतलब वो क्रेज नहीं है कि मैं कुछ पहनूं, मैं कुछ करूं। मुझे लगता था अब मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं आपको किसको बताऊं ये बात, मैंने मेरे घर पे भी बोला, मम्मी वगैरह को, हस्बैंड को, बट वो अच्छे बहुत है नो डाउट, बट शायद डिप्रेशन जैसी चीज को ना कोई बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है, कोई मेंटल स्टेट समझ ही नहीं पाता कि इसको क्या फील हो रहा है जो ये ऐसे कर रही है, ये बैठे बैठे रोने लग जाती है, ये मैंने ये भी फील किया संगत जी, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं घर आती हूँ मैं फिर ऐसे हो जाती हूँ। तो और आप घर से बाहर कितने टाइम में रह सकते हो, कोई आपको घुमाने ले जाएगा तो कितना ले जाएगा, इतना तो सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है ना कि आपको डेली कहीं घुमाने ले जाए, ये भी नहीं हो सकता। और घुमाना मतलब ये नहीं बड़े बड़े ट्रिप्स, अगर मैं नॉर्मली एक मार्केट तक भी निकल रही हूँ ना ऐसे ही जस्ट घूमने के लिए एक राउंड लगा के, तो भी मेरा माइंड फ्रेश है, बट मैं घर पे आते मैं फिर ऐसे ही
हस्बैंड भी बोलने लगे थे कहाँ खोए रहते हो, कैसे रहते हो आप, इस चीज का असर बच्चे पे भी पड़ रहा होगा। और मुझे खुद को भी लगता था यार मेरी बच्ची पे मुझे ध्यान देना चाहिए, उस पे भी तो मेरे इस नेगेटिव बिहेवियर का इफेक्ट पड़ रहा होगा। चिड़चिड़ी हो गई थी, गुस्सा आने लगा था, खुद को देखती थी तो अच्छा नहीं लगता था, कैसी हो गई हूँ, खुद से प्यार नहीं था। मतलब आप समझ रहे हैं ना संगत जी। तो मुझे लगा कि यार अब मैं किसको बोलूं, कोई तो इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, मैं कहाँ से इस चीज का इलाज कराऊं। फिर मुझे जैसे ही गुरुजी मेरी लाइफ में आए, और हाँ मेरी बॉडी में बहुत पेन, मैं आलस में पड़ी रहती थी, बस आलस में पड़े पड़े कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, अजीब सी होती जा रही हूँ, और सब दर्द कर रहा है, दवाई खा ली, काम कर लिया, फिर लेट गई, सब फिर तब भी सब दुख रहा है, सोना चाह रही हूँ तो सब दुख रहा है, चैन से सो नहीं पा रही हूँ, है ना। और तो मुझे लगा मैं किसको बोलूं कि मेरी क्या हालत है, कोई मुझे इस चीज से निकाल दे, बस मैं ना परेशान हो गई हूँ। फिर मेरे गुरुपा मेरी जिंदगी में आए, मैंने उनसे भी ये बोला, वैसे तो मुझे और भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने वो भी गुरुपा को बताई, और बताई भी क्या, वो तो जग पिता है, पूरे परम पिता है, वो तो सब कुछ वैसे भी जानते हैं, बिना बताए भी जानते हैं, तभी तो वो मेरी जिंदगी में अब आए हैं, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है कि अब ये बच्ची ना बहुत सालों से अब ये परेशान हो चुकी है, इसकी कोई तो इच्छा पूरी, मतलब जो भी विशेष थी ना सब तो मर गई है। जिसमें कि गुरुपा ने ना वैसे भी बहुत एक अच्छा मुझे हमसफर, माता पिता तो है ही अच्छे, पिता पति भी बहुत अच्छा दिया है, बच्ची भी बहुत अच्छी दी है, उन्हीं के कारण तो मैं अब जी रही हूँ इतने टाइम से ना। बट कुछ लोग फिर भी बहुत नेगेटिव होते हैं आपके आसपास के, तो और गुरुजी के मुझे मैसेज भी शो होते हैं कि तेरे कुछ अपनों को मैंने ही तुझसे दूर किया है, वरना वो तेरा ना, तेरे लिए वो जहर बन जाते, वो तेरा अच्छा नहीं चाहते, और कुछ ऐसे भी लोग तेरी जिंदगी में भेजे हैं जो तेरा ख्याल रखे, और ये सच है, सच में मुझसे नेगेटिव लोग अब दूर हो चुके हैं, जो कि मुझे पॉसिबल ही नहीं लगता था, बट अभी फिलहाल सब दूर है, कोई नहीं मेरे घर आता है, ना मैं कहीं जाती हूँ, गुरुजी की कृपा है। फिर गुरुजी मेरी जिंदगी में आए, सॉरी संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे मन की शांति, दिमाग का सुकून दे दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, ना ही तो मेरी बॉडी ऐसे है कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी ने बोला तेरा सब कुछ मैं कर दूंगा, मैं आ गया हूँ ना, अब तू चिंता छोड़ दे। और मैंने गुरुजी का सत्संग करने की, मुझे पता भी नहीं कैसे करते हैं कैसे नहीं, थोड़ा बहुत जो सुना देखा उसके जरिए मैंने सोचा मैं कल करूंगी ना, किसी भी हाल में करूंगी, मुझे करना है जो मुझे गुरुजी ने बोला। मेरे लिए कढ़ी चावल बनाना, मैंने सब बनाया, और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, रात को ऐसा हुआ जिससे सारे दर्द अपने आप ही खत्म हो गए, है ना। और मैं इतना एनर्जेटिक, अगली सुबह मैं उठती हूँ पहले जैसी, मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरे दर्द नहीं है, मैं भाग भाग के सामान ला रही हूँ, बना रही हूँ, भोग बना रही हूँ, मैंने सत्संग की तैयारी की, और हाँ उस दिन या पता नहीं उससे पहले वाले दिन कबूतर को भी मरा पाया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे कष्ट तो गुरुजी ले गए, उन्होंने सही बोला था। फिर मैंने सब किया। जब मैं सत्संग करती हूँ ना, वैसे तो मैं रोजेस लेके आई थी, बट रोजेस की खुशबू जब मैं शॉप पे गई मुझे तब नहीं आई, जब मैं घर लाई मुझे तब नहीं आई, जब मैंने वो रखे मुझे तब नहीं आई। जैसे ही मैं सत्संग शुरू करती हूँ ना, मेरा रूम, जब मैं मेरे रूम में एंटर करती हूँ तो वो रूम जहाँ पे मैं सत्संग कर रही थी इतना खुशबू से महका हुआ था ना, मुझे तब भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये गुरुजी आए हैं यहाँ पे, तब ये ऐसे हो रहा है। मैंने मेरे हस्बैंड से भी पूछा बाद में, उन्होंने भी बोला हाँ बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। मुझे आज रियलाइज हो रहा है, अरे पागल वो तो गुरुजी आए थे, तू गुरुजी को ढूंढती रहती है, पर वो तो तेरे साथ ही तो थे, वो आए तो थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसलिए संगत जी बिलीव रखो गुरुजी में, गुरुजी आपको दिख के दर्शन दे या अदृश्य रूप में। हाँ मुझे मैसेज भी शो हुआ था मैं अदृश्य रूप में तेरे साथ ही हूँ, मैं तब भी नहीं समझ पाई, बट संगत जी गुरुजी पे विश्वास रखो, वो आपके आसपास होते हैं, हमेशा होते हैं, हमेशा।
और वो सब ठीक कर देंगे। अब जो जो गुरुजी मुझे बोल रहे, गुरुजी मुझे गुरुपा माफ करना, मैं आधी चीजें भूल जाती हूँ, आधी जान करके नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है यार इतना सारा मैं कैसे करूँ, मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप ही मेरी मदद करना गुरुपा, आप हो, आप ही सब कुछ करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग सुने गुरुपा, उनका भी कल्याण करना। जो जो आंटी जी ये शेयर करेंगी उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, सब पे अपना आशीर्वाद, अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।